عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مستحق افراد کے لیے اشیاء ضروریہ پر سبسڈی سے متعلق اجلاس. احساس فوڈ اسٹیمپ پروگرام پر تفصیلی بریفنگ. ہماری پوری کوشش ہے کہ غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے. وزیر اعظم. بالواسطہ ٹیکس سے سب سے زیادہ متاثر غریب عوام ہوتے ہیں. اضافی محاصل کے بوجھ میں کمی لانے کے لیے غیر روایتی حل تجویز کیے جائیں. آٹے، چینی اور بنیادی اشیاء کی مناسب قیمتوں پر فراہمی کو یقینی بنانا ترجیح ہے. وزیر اعظم عمران خان کا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم نساء عالمی دن کا اس سال موضوع خواتین کو ترقی کے یکساں مواقع کی فراہمی. گوگل نے بھی ڈوڈل خواتین کے نام کر دیا. خواتین کو مرکزی دھارے میں شامل کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں ہر شعبے میں خواتین کو طاقتور اور با اختیار بنانا ہوگا. اس حوالے سے حکومت قانون سازی سمیت تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا ایوانی صدر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریب کا انعقاد. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سمیت ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری، خواتین اراکین پارلیمنٹ سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت. خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پارلیمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی. اسپیکر اسد کیسر. میڈیا کی ترقی اور عوام تک درست معلومات کی فراہمی میں خواتین صحافی بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. حکومت صحافیوں خصوصاً خواتین کے تحفظ اور فلاح کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے. انسداد ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس اور گھریلو تشدد سے تحفظ کے قانون خواتین کو انصاف کی جلد فراہمی کو ممکن بنائیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد اور ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل آسٹن اسکاٹ ملر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور افغان امن عمل کے حوالے سے گفتگو. مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں خواتین کا قتل اور بے حرمتی عالمی برادری کے لیے بڑا سوالیہ نشان. جنوری 2001 سے اب تک 675 خواتین شہید. بھارتی فوجیوں نے 11,236 خواتین کی بے حرمتی کی. پائلٹ گنز کے وحشیانہ استعمال سے ہزاروں کشمیری طالبات زخمی. عالمی یوم نسواں پر کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ. بھارت میں مذہب کے نام پر اقلیتوں کے ساتھ مظالم. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس پر جنیوا میں احتجاجی کیمپ. اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی تصاویر اور بینرز آویزاں. فاسسٹ مودی کے دور حکومت میں اقلیتوں پر تشدد کے واقعات پہ بے پناہ اضافہ ہوا. مظاہرین. کاشتکاروں نے مودی مخالف مہم تیز کر دی. خواتین کے عالمی دن پر احتجاج میں خواتین بھی پیش. مختلف ریاستوں سے 50,000 خواتین کا دستہ دلی کی جانب بڑھ رہا ہے. خوفزدہ مودی حکومت نے دلی کے ارد گرد بارڈرز بند کر دیے. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. یوسف رضا گیلانی ناجائز ذرائع کے ذریعے سینیٹر منتخب ہوئے. الیکشن کمیشن سے اقتدا ہے کہ پورے کیس کی تحقیقات کی جائیں. چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہماری درخواست پر فوری فیصلہ کرے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو. ملک میں کورونا سے مزید 39 افراد جاں بحق. 1,780 افراد میں وائرس کی تصدیق. دنیا بھر میں وبا سے 26,04,000 سے زیادہ ہلاکتیں.
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کراچی میں لیڈیز موٹر بائک ریلی کا انعقاد، 150 سے زائد خواتین بائکرز کی شرکت۔ سوسائٹی کی باہمت خواتین کی حوصلہ افزائی اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ روس کے آندرے روبلیو نے روٹردام ٹینس ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں ہنگری کے مارٹون پوچووچ کو 7-6 اور 6-4 سے شکست۔ روسی کھلاڑی کا یہ مسلسل چوتھا ATP 500 اعزاز ہے۔ السلام علیکم، نیوز اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شاہد نسیم، میں ہوں آسماء اقبال۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ناظرین، نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ان خبروں کی تفصیل جانیے گا ایک بریک کے بعد۔ منزل بدلی، بدلا رستہ، بدلا خیبر پختونخوا۔ صوبے کی 100% آبادی کے لیے 100% مفت علاج۔ صحت سہولت پروگرام سے ہسپتالوں میں داخلے کی شرح میں 270% تک اضافہ۔ دور دراز وادیوں اور آبادیوں کو خوشحالی کی جاری سفر سے جوڑنے کے لیے سوات ایکسپریس وے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد چکدرا سے فتح پور سوات تک 81 کلومیٹر طویل 4 لین سوات ایکسپریس وے کا آغاز۔ صوبے میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو ترقی کے عمل میں شامل کرنے کے لیے 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں 142 ارب روپے سے 127 نئے منصوبوں کی 3 سالوں میں تیز تر تکمیل، اور ہر وہ سہولت جو صوبے کے دیگر علاقوں میں موجود ہے۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، حکومت خیبر پختونخوا۔ یہ کھلتا آسمان، نکھرتا یہ جہاں، عورت کی بڑی ہے شان، عورت دھرتی کا ماں۔ خواتین کے عالمی دن 8 مارچ کو عورت کی عظمت کو سلام۔ وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم نئے قوانین، انسداد عصمت دری، انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل آرڈیننس، کرمنل لا ترمیمی آرڈیننس، لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی ایکٹ، گھریلو تشدد کے خاتمے کا بل، وراثت میں خواتین کی شمولیت پر قانون سازی، بچوں کی گھریلو ملازمت پر پابندی، زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ، زینب الرٹ ایپ، ICT رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ، گھریلو تشدد یا حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق مفت قانونی مشاورت کے لیے ٹول فری ہیلپ لائن 1099۔ خواتین کے حقوق کی امین، وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف پہنچانا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، جس کا مکمل احساس ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسلام آباد میں مستحق اور غریب افراد کے لیے اشیاء ضروریہ پر سبسڈی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے۔ حکومتی سبسڈی کا شفاف اور مؤثر استعمال حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کو احساس فوڈ اسٹیمپ پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سماجی تحفظ کے لیے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بتایا کہ مستحق افراد کو براہ راست سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ پروگرام کا مقصد مالی معاونت کے شفاف طریقہ کار کو اپنانا ہے۔ وزیر اعظم کو پروگرام سے استفادہ کرنے والے خاندانوں اور افراد کے اعداد و شمار اور ابتدائی تخمینے پیش کیے گئے۔ وزیر اعظم نے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ملکی معاشی حالات کے باعث غریب افراد پر پڑنے والے بوجھ کا مکمل احساس ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مجوزہ نظام کے حوالے سے طریقہ کار اور اعداد و شمار کو جلد حتمی شکل دی جائے تاکہ اس پروگرام کا جلد سے جلد اجرا کیا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بالواسطہ ٹیکسوں کا سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بوجھ میں کمی لانے کے لیے غیر روایتی حل تجویز کیے جائیں تاکہ ریاستی آمدن بھی متاثر نہ ہو اور غریب عوام کو ٹیکس کے بوجھ سے بھی بچایا جا سکے۔ اسلام آباد میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو ہدایت کی کہ خوردنی تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر اشیاء پر عائد ٹیکس کا جائزہ لیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو ٹیکس میں کمی لا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ گندم کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے پیش کی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آٹے، چینی جیسی بنیادی اشیاء کی مناسب قیمتوں پر فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز، وزیر اعظم کے ڈیجیٹل فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد اور ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے جنرل مینیجر عمران غزالی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اطلاعات نے وزارت کی طرف سے تجویز کردہ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ پالیسی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پاکستان میں فی الوقت 9 کروڑ 30 لاکھ انٹرنیٹ صارفین ہیں، جن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ انٹرنیٹ صارفین کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈورٹائزنگ پالیسی ترتیب دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ منظوری کے بعد یہ حکومت پاکستان کی پہلی پالیسی ہوگی جس کے تحت حکومت وزارت اطلاعات کے ذریعے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر تشہیر کر سکے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس پالیسی کے تحت نہ صرف نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور پبلیکیشنز کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ پاکستانی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ارسلان خالد نے بتایا کہ اس پروگرام کے نتیجے میں پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا کی ترقی، ترویج اور نچلی سطح تک ڈیجیٹل خواندگی کا فروغ ممکن ہو سکے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسلام آباد میں سینیٹر فیصل جاوید اور سینیٹر ذیشان خانزادہ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پناہ گاہوں کے دائرۂ کار میں توسیع اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام پر عمل درآمد سے متعلق گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ غریب اور مستحق افراد کی کفالت اولین ترجیح ہے۔ حکومت تمام متعلقہ فریقوں کی مشاورت اور تعاون سے مستحقین کی مدد کے لیے کوشاں ہے۔ روکے کیسے خود کو ہم، آگے بڑھنے والے قدم رکتے نہیں اے ہمدم۔ سانسوں میں باقی ہے دم، روکے کیسے خود کو ہم، آگے بڑھنے والے قدم رکتے نہیں اے ہمدم۔ ہاریں گے کیسے ہم تو طوفانوں کے جیسے، ہار کے بھی جیت جائیں، اتنی آگ باقی ہے آنکھوں سے میرا کے آگے تو سارے آ جا رے آ جا رے، آنکھوں سے میرا کے آگے تو سارے آ جا رے آ جا رے۔ بلا شبہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور خواتین کے معاشرے میں فہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا دن منایا جا رہا ہے، اور گوگل نے ڈوڈل خواتین کے نام کر دیا۔ عالمی دن کا اس سال کا موضوع ہے خواتین کو ترقی کے یکساں مواقع کی فراہمی۔ تفصیل جانتے ہیں سدرا عاصم سے ان کی اس رپورٹ میں۔ خواتین معاشرے کا اہم کردار ہیں۔ ان کی سماجی، معاشرتی اور معاشی شراکت داری کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ صنفی مساوات کا سنگ میل عبور کرنا ہے تو خواتین کو تحفظ، ان کی معاشی خود مختاری، سماجی شعبوں میں ان کی خود مختاری کو یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں خواتین کو ہر موقع پہ آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ کھیل کا میدان ہو یا سیاست، تعلیم و تدریس ہو یا وکالت، کاروبار ہو یا فنی مہارت، اور سب سے بڑھ کر طب کے شعبے میں خواتین کا کردار یقیناً قابل ستائش ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وبا میں خواتین نے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کردار میں اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دیا ہے۔ کسی بھی شعبے میں جو ہے خواتین مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، آلموسٹ ہر شعبے میں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں۔ خواتین جو ہے وہ بہت ہارڈ ورک ہوتی ہے، لائل ہوتی ہے، ڈیووٹیڈ ہوتی ہے اپنے کام کے ساتھ، اور یہ ہے کہ پورے ڈیووشن کے ساتھ اپنے کام کو، اپنی کارکردگی کو وہ سر انجام دیتی ہے۔ خواتین کو اب حقوق نسواں بل اور انسداد حراست بل جیسے حفاظتی اور قانونی حصار فراہم کر دیے گئے ہیں۔ آج کی خواتین اپنے فرائض منصبی بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ ہماری خواتین معاشرے میں کسی سے کم نہیں ہیں، وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور وہ الحمدللہ معاشرے میں جہاں پہ دیکھا جائے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ملک کی موجودہ قیادت خواتین کے تحفظ اور ان کی معاشی ترقی کے لیے عملی طور پر کوشاں ہے۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے اس سال موضوع بھی چوز دا چیلنج رکھا گیا ہے کہ خواتین کسی بھی شعبے میں کوئی بھی چیلنج قبول کر سکتی ہیں۔
ترقی کے سفر میں صنف نازک جہاں ہمت اور حوصلے کی امین ہے، وہیں ایک رہبر کے طور پر اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ خواتین کو مرکزی دھارے میں شامل کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمیں ہر شعبے میں خواتین کو طاقتور اور بااختیار بنانا ہوگا۔ ناظرین، خواتین کے عالمی دن پر ایوانی صدر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی سمیت تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آغا مسعود خالد سے جانتے ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ آج جس اہم موڑ پر پاکستان کھڑا ہے، اس میں ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے خواتین کی شمولیت انتہائی اہم ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ خواتین کو تمام شعبوں میں مساوی مواقع فراہم کرنا حکومت کا عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سازشی نظریات کے تحت خواتین کے حقوق کے حوالے سے پاکستان پر تو سوال اٹھائے جاتے ہیں، مگر بھارت میں خواتین اور کمزور طبقات کے خلاف بدترین مظالم کو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر ہندوستان کا ذکر نہیں آیا۔ یہ ہے ہپوکریسی۔ جب آپ باتیں دبائیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہاں پر عورتوں کے خلاف مظالم بڑھ رہے ہیں، مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے اوپر مظالم بڑھ رہے ہیں۔ احساس پروگرام میں کووڈ میں آپ نے ثابت کیا کہ کمزوروں کو اٹھا کر جب ایک مضبوط پاکستان بنے گا، وہ پاکستان سب کے حقوق کی حفاظت کرے گا اور دنیا کے لیے مشعل راہ بنے گا۔ چند سالوں کے اندر یہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس کے اندر ڈیکیڈ نہیں لگنے چاہیے۔ ایک ولفل معاشرہ جو ہے اس کے بس میں ہے کہ یہ تبدیلیاں لے کر آئے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمارا مذہب اور آئین خواتین کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ معاشرے میں خواتین کو مضبوط اور پر اعتماد بنانے میں میڈیا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ معاشرے کو بدلنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو کلچرل سٹرکچرز ہیں، ان کا مقابلہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو لہذا میڈیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کے اندر عورت کے اوپر وائلنس نہیں دکھایا جائے۔ ڈراموں کے اندر عورت کی عزت کرنا کیوں نہ، یعنی آپ یہ کہیں کہ آرٹیفیشل بات ہے، نہیں ہے، عورت کی عزت کرنا جو ایک اسلامی معاشرے کا شعار ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک رسپانسبل میڈیا کی ضرورت ہے۔ اہم پہلو یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بے انتہا کوآپریشن ہے، یعنی جو قرآن کی ہدایات ہیں اس پر علماء تو بہت آگے ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ عورت کا وہ مقام جس کے اندر اس کی سیفٹی ہو، اس کی امپلائمنٹ ہو، ہمارے مذہب کے اعتبار سے کلچر اور ٹریڈیشن اگر اس کے خلاف بات کرے تو آپ کو اس کو قابو کرنا پڑے گا۔ تقریب سے خواتین وزراء شیری مزاری، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور زبیدہ جلال نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خواتین زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھتے ہوئے ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ یورپی یونین کی سفیر اینڈرولا کیمینارا نے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں حیثیت کے حامل باہمت خواتین نے کہا کہ ترقی نسواں کے لیے تعلیم کا عام ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا قوموں کے آگے بڑھنے کی بنیادی سیڑھی ہے۔ پائیدار ترقی کے اہداف سے ہمکنار ہونے کے لیے خواتین کی ہر شعبے میں بھرپور شرکت ناگزیر ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، مزید اہم خبریں دیکھیے گا ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ جی بچوں، کر لیا ہوم ورک؟ جی۔ ذرا مجھے اسکول کی ڈائری تو دکھائیں۔ ہلکا بستہ ایکٹ، کیا اب روزانہ ساری کتابیں اسکول نہیں لے کے جانی؟ ٹیچر نے کہا ہے کہ اس ڈائری کے مطابق کتابیں لے کے آنی ہیں۔ واہ بھائی، یعنی اب ہر بستہ ہوگا ہلکا بستہ۔ ہلکا بستہ ایکٹ 2020 خیبر پختونخوا پاکستان کا پہلا صوبہ جہاں ہے اب ہر جماعت کے بستے کا وزن مقرر۔ حکومت کا تعلیم دوست اقدام۔ ہلکا بستہ کامیابی کا راستہ۔ محکمہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن حکومت خیبر پختونخوا۔ یہ کھلتا آسمان نکھرتا یہ جہاں، عورت کی بڑی ہے شان، عورت دھرتی کا ماں۔
खवातीन के आलमी दिन 8 मार्च को औरत की अजमत को सलाम। वजीर आजम पाकिस्तान की क़यादत में खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम नए क़वानीन, इंसदाद असमत दरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस, क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट, घरेलू तशद्दुद के खात्मे का बिल, वरासत में खवातीन की शमूलियत पर कानून साजी, बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट, ज़ैनब अलर्ट ऐप, ICT राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, घरेलू तशद्दुद या हुकूक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक मुफ्त कानूनी मशावरत के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1099। खवातीन के हुकूक की अमीन, वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि खवातीन के आलमी दिन के मौके पर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सब्जाजार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से स्पीकर असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी, खवातीन अरकान पार्लियामेंट और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इसकी तफसील सदफ अफसल से। मुस्तकबिल की नस्ल की नशोनुमा हो या कौम साजी, खवातीन हर शोबे में अपना किरदार अहसन तरीके से निभाती हैं। 8 मार्च खवातीन की मुआशी, सियासी, सकाफती और समाजी कामयाबियों को उजागर करने का दिन है। इस मुनासबत से पार्लियामेंट हाउस में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि खवातीन अरकान पार्लियामेंट का कानून साजी में अहम किरदार रहा है। खवातीन के हकूक के लिए मौजूदा पार्लियामेंट ने अहम तरीन कानून साजी की है। खवातीन पार्लियामेंटेरियन है जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं तहसीन पेश करता हूँ और ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आपका जो ये टाइम है, ये जो आपकी लेजिस्लेशन के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 4-5 महीनों के अंदर अंदर आप अपना काम को जो है ना वो मुकम्मल करेंगे। सेक्रेटरी विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस मुनज़्ज़ा हसन ने भी तकरीब से खिताब किया। और असम्बलियों की सतह पर कानूनी तालीम के फरोग के लिए हम जल्द ही पार्लियामेंट्री फेलोशिप प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। मैं आज ये ऐलान करती हूँ कि हम इस प्रोग्राम में माजूर खवातीन को खसूसी शामिल करेंगे। ब्रिटिश कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पार्लियामेंट हाउस में एक और तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में खवातीन की लीडरशिप में बामकसद शिरकत के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में खवातीन के किरदार का तज्जिया किया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने तकरीब से खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तानी खवातीन का वकार बुलंद करने और उन्हें मुल्की तरक्की के धारे में शामिल करने के लिए कोशां है। माशरे के अंदर इन खवातीन का किरदार बहुत अहम है, बहन का, बेटी का, माँ का। अगर आप मेहनत करेंगी और आप अल्लाह पे आपका यकीन होगा तो आपके लिए स्पेस बनती जाएगी। खवातीन सियासतदानों के लिए या खवातीन पार्लियामेंटेरियंस का जो मसला है कि आपको लेजिटिमेसी चाहिए, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, आपको अपने लोगों से इज्जत चाहिए कि मैं भी आपके बराबर हूँ, मैं भी आपके लिए और आपके साथ काम कर सकती हूँ। ये समझने की हमने कोशिश की है कि लोगों का डिफरेंट सेक्टर्स में जो हमने इसमें कवर किए, जिसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है, जिसमें लॉ एंड जस्टिस शामिल है, जिसमें खेलों का शोबा शामिल है। 6-7 शोबों में हमने जाके देखा है क्या वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होती हैं कि नहीं। हमारे मुआशरे में खवातीन के मुतालिक मुस्बत सोच को फरोग देने की अशद जरूरत है, क्योंकि खवातीन पर मुश्तमिल मुल्क की निस्फ आबादी को नजरअंदाज करके मुआशरे में तहजीब को फरोग देना मुमकिन नहीं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि मीडिया की तरक्की और अवाम तक दुरुस्त मालूमात की फराहमी में मर्दों की तरह खवातीन सहाफ़ी भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने अपने कलम की कुव्वत से आज़ादी सहाफ़त की दरख्शां रिवायात को बरकरार रखा और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठा रही है। ख़वातीन सहाफ़त के शोबे में आज़ादाना और एहसन अंदाज से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं। उनके लिए मज़ीद साजगार माहौल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भरपूर काविशें कर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इंसदाद रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस और घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का कानून ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम और इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ये कहा कि ये दिन ख़वातीन इज्तिमाई अज़्म की तजदीद का मौका फराहम करता है कि हम ख़वातीन के हुकूक़ के फ़रोग़ और एहतराम के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खवातीन के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी खवातीन ने कौम की इज्जत व वक़ार में इजाफे में किरदार अदा किया है। वो कोरोना वायरस के खिलाफ भी सरगर्म नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि यूनिफॉर्म में मलबूस खवातीन ने भी मुख्तलिफ शोबों में कौम और इंसानियत के लिए खिदमात अंजाम देते हुए अपनी सलाहियतें मनवाई हैं। वो इज्जत व तकरीम की मुस्तहिक है।
मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर शोबा खवातीन के ज़ेर एहतमाम मरकजी शाहराह पर एहतजाजी मार्च किया गया। कश्मीरी खवातीन पर भारतीय जुल्म के खिलाफ एहतजाज करती खवातीन ने बैनर्स और कतले उठा रखे थे जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरी खवातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने और भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी खवातीन की रिहाई के मुतालबात दर्ज थे। आलमी यौम खवातीन के मौके पर तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की जुर्रतमंद और नदर माओ बहनों और बेटियों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने तहरीक आज़ादी के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद और अफगानिस्तान में रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने मुलाकात की। ISTR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के अजीम किरदार को सराहा। नाज़रीन, पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मजहर है जहाँ बसने वाले तमाम मज़ाहिब आज़ादी के साथ अपने मजहब की पैरवी करते हैं। यौम पाकिस्तान पर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के जज्बे का इजहार करते हुए एक प्रोमो जारी किया गया है। दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है, ताहम भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में फोर्सेस की तरफ से खवातीन को दरपेश मुश्किलात का सिलसिला जारी है। जबकि कश्मीर मीडिया सर्विस के शोबा तहकीक की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा इलाके में जनवरी 1989 से अब तक शहीद होने वाले 95,747 अफराद में हजारों खवातीन शामिल हैं। फौजियों ने जनवरी 2001 से अब तक कम से कम 675 खवातीन को शहीद जबकि 11,236 खवातीन की बेहुरमती की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पैलेट गन्स के इस्तेमाल से हजारों तालिबात जख्मी हुई। आसिया अंदराबी, नाहिदा नसीम, फहमीदा सूफी, नसीमा बानो, इंशा तारिक, शाजिया अख्तर, हिना बशीर, आसिया बानो और अलास आरा समेत 12 से जायद खवातीन हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाने पर गैर कानूनी तौर पर नजरबंद है। हुर्रियत रहनुमाओं, तंजीमों और इंसानी हुकूक के अलंबरदारों ने अपने बयानात में आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में ख़वातीन के खिलाफ जंगी जराइम पर भारत से बात पुरस करें। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के सेनेटर डेविड शॉबर्ज ने भारत की हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों पर पाबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन नए नाजी ग्रुपों पर नजर रखे। और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर की इन इफ़तमाब माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने आज़ादी के हुसूल के लिए अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए। मुकर्ररीन ने कहा कि मकबूजा इलाके में भारतीय काबिज फौज गुज़िश्ता 29 बरस से ख़वातीन को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक याददाश्त भी पेश की गई। नाज़रीन, भारत ने मजहब के नाम पर इस्तेहसाल और अक़लियतों के साथ मजाले। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास के मौके पर भारत में मौजूद अक़लियतों ने जनीवा में एहतजाजी कैंप लगाया। एहतजाजी कैंप में भारत में अक़लियतों के साथ होने वाले मजालिम की तस्वीर और बैनर्स आवेज़ां थे। मुजाहिरीन का कहना था कि नरेंद्र मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भारत में मौजूद अक़लियतों पर तशद्दुद और उनको हरासा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। भारत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। मोदी हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मजहब के नाम पर इस्तेहसाल के वाक़यात में इजाफा हुआ। पुलिस के मुतासिब रवैये और अदालत से भी जल्द इंसाफ न मिलने की वजह से अक़लियतें खौफ व हरास में मुब्तला हैं। अक़लियतों का जबरी मजहब तब्दील कराया जाता है, इबादत गाहें जलाई जाती हैं। तालीमी इदारों में भी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात को मजहबी मुनाफ़रत का सामना करना पड़ता है। आलमी तंजीमें भारत में अक़लियतों के खिलाफ रवा रखे जाने वाले इस गैर इंसानी सलूक और पुरतशद्दुद वाक़यात पर कई बार तशवीश का इजहार कर चुकी है। बात हो रही है भारत की, तो आपको बताएं कि वहाँ ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है और अब मुजाहिरीन ने दूसरे बजट सेशन के दौरान भारतीय पार्लियामेंट के घेराव की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। घेराव में शिरकत के लिए 50,000 खवातीन किसान भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। खवातीन किसान काले कपड़े पहनकर रैलियों में शरीक हुई। भारतीय पार्लियामेंट का दूसरा बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है। खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से टाइम मैगजीन ने एहतजाज में शरीक खवातीन किसानों को सरवत पर जगह दी है। किसानों का पैगाम था, उन्हें डराया और खरीदा नहीं जा सकता। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,592 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई जबकि 22 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 13,227 हो गई है। मुतासिरा अफराद में से 5,60,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। 1,609 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
बात करें अगर दुनिया भर की तो कोरोना मुतासरीन की तादाद 11 करोड़ 74 लाख से तजावुज कर गई, जबकि 26 लाख 5 हजार से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। अमरीका में 5 लाख 37,838 अफराद हलाक, जबकि 2 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मुतासर हुए हैं। भारत में 1,57,890 और ब्राजील में 2,65,500 अफराद जान की बाजी हार गए। खबरनामे में कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए बात करेंगे वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की, जिनकी सदारत में ज़राई कर्जों में बेहतरी लाने से मुतालिक मंसूबों का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में ज़राई कर्जों में इजाफे और इन्हें किसानों के लिए आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। वजीर खजाना ने मुख्तलिफ तजावीज़ की रोशनी में वाज़ेह एक्शन प्लान तैयार करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बैंकिंग अदालतों में खाली ओहदों पर जजों का तकर्रुर तरजीही बुनियाद पर किया जाए। गिलगित के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। नाज़रीन, वजीर मनसूबाबंदी का इस मौके पर कहना था कि गिलगित का अपना इलाकाई ग्रिड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गिलगित डेवलपमेंट पैकेज का मकसद तवानाई की पैदावार, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और जनरेशन ट्रांसमिशन के तक़सीम की सलाहियत को बेहतर बनाना है। असद उमर ने वजारत IT और PTA को गिलगित में 3G और 4G लाइसेंस की नीलामी को तरजीही बुनियादों पर हातमी शक्ल देने और अफसरों की तरबियत के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ट्रांसपोर्ट, मवासलात और आबी वसाइल से मुतालिक 52 अरब रुपए की लागत के 6 मनसूबों की मंजूरी दे दी। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांजेब खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे से मुतालिक 16 अरब 27 करोड़ रुपए की लागत के 2 मनसूबे, जबकि आबी वसाइल के शोबे से मुतालिक 35 अरब 69 करोड़ रुपए की लागत के 4 मनसूबे मंजूर किए गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, जिस पर उन्हें अफसोस है। शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज ने 5 दहशतगर्दों को गुज़श्ता रोज भी हलाक किया। दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे और मुल्क में अमन और सुकून की फजा कायम होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पार्लियामेंट के सामने 2 रोज कब्ल जो हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। कायदीन को भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करना चाहिए था। जैसे ही वाकई की इत्तला मिली, IG इस्लामाबाद को फोन किया और सिक्योरिटी मुहैया करने की हिदायत की। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वो ख़वातीन जो मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनको मज़ीद मौक़े फराहम करने की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजीहा अकरम ने कहा कि किसी भी मुआशरे की तरक्की ख़वातीन के बगैर नामुकम्मल है। मुकर्रीन ने कहा कि जहाँ ख़वातीन और मर्द साथ काम करते हैं, वहाँ वर्क फ्रेंडली माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की ख़वातीन को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ख़वातीन ने हमारी कौम और दुनिया का मुस्तक़बिल संवारने के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दी हैं। जाहिद हफीज चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज का दिन आलमी बरादरी को ये भी याद दिलाता है कि भारत के गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। और ख़वातीन के आलमी दिन की बात हो रही है तो आपको बताएं कि इस मौके पर कराची समेत सूबा सिंध में सेमिनार मुनक़िद किए गए और रैलियां भी निकाली गईं। हसन नाफिस सिद्दीकी की ये रिपोर्ट देखिए। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, औरत जिसे कायनात का हुस्न भी कहा जाता है। मुआशरे में औरत जो कि एक माँ, बहन और बीवी का दर्जा रखती है, उसे उसका जायज मकाम दिलाने और इसे बराबरी के हुकूक देने के लिए ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गोंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सिनफी मसावात के हवाले से अपने अज़्म का इरादा करने के लिए PSX ने इस साल दुनिया भर में मौजूद 100 से ज़ायद एक्सचेंजेस के साथ ये दिन मनाया। तकरीब में कारोबारी दिन का आगाज घंटी बजाकर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए PSX के MD और CEO फरूख एच खान का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान कॉर्पोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट सिनफी मसावात के मकसद को पूरा करने के लिए ठोस इक़दाम कर रहा है। इस दिन की मुनासिबत से कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रीन का कहना था कि ख़वातीन जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और सलाहियतों के एतबार से मर्दों से कम नहीं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमें ये अहद करना होगा कि ख़वातीन के साथ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि एक माँ अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत से मुआशरे को सूदमंद शहरी फराहम कर सकती है।
खवातीन के आलमी दिन के मौके पर वुमेन लीडरशिप, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन कोविड एरा के मौजू पर वुमेन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुखर्रीन ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान खवातीन का किरदार बेमिसाल रहा और उन्होंने मर्दों के शाना बशाना रोजगार का सिलसिला कायम रखने के लिए घरों में बैठकर मुख्तलिफ काम किए। सक्खर में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से खवातीन के आलमी दिन के मौके पर आगाही रैली निकाली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाइस्ता खुसरो की क़यादत में रैली दुआ चौक से गुजरती हुई प्रेस क्लब सक्खर पहुंची। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शिरका ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त का तकाजा है कि मुआशरे में खवातीन को उनका जायज मुकाम दिया जाए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, यहाँ पर आपको अहम खबर जागा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ समाअत जल्द करने की दरखास्त कबूल कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन कल यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वीडियो स्कैंडल और कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत करेगा। ये फौरी खबर जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ समाअत जल्द करने की दरखास्त कबूल कर ली है। आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। आगे बढ़ते हैं। इस फौरी खबर से पहले हम बात कर रहे थे वुमेन्स डे की। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ख्वातीन का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन ने भरपूर शिरकत की। देखते हैं साजिद अख्तर की ये रिपोर्ट। ख्वातीन माशरे का अहम हिस्सा है। माशरती फलाह व बहबूद, मुल्क और कौम की तरक्की और बच्चों की तरबियत में इनका किरदार सबसे बढ़कर है। ख्वातीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तकारीब का एहतमाम किया गया। ख्वातीन के आलमी दिन के हवाले से वुमेन यूनिवर्सिटी मैदान में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल वजीर ने कहा कि इस्लाम ने ख्वातीन को मर्दों से ज्यादा हुकूक दिए हैं। हमारा इस्लामी माशरा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई मादर पिदर आज़ाद माशरा नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट जो है इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पता नहीं कौन से हकूक मांग रहे हैं। हम इज्जत के साथ, वकार के साथ अपना वो हक मांग रहे हैं कि हमें एजुकेशन का हक दे दिया जाए, हमें स्पेस का हक दे दिया जाए, हमें तालीम का हक दे दिया जाए, हमें विरासत का हक दे दिया जाए, हमें इक्वलिटी का हक दे दिया जाए। अगर खवातीन पोटेंशियल की उनको प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो यूएनडीपी कहता है कि पाकिस्तान चूंकि वन ऑफ द यंगेस्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड है, पाकिस्तान की जो यूथ है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यूथ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन जैसी बहादुर खवातीन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हुकूमत खवातीन की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। तकरीब से वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान डॉक्टर समन अब्बास के अलावा दीगर मुकर्रिरीन ने भी खवातीन के आलमी दिन के हवाले से ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि माओ का तालीम याफ्ता होना वक्त की अहम जरूरत है। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से केक काटा गया। इस मौके पर लोगों को शहरी खिदमात की फराहमी में खवातीन मुलाजिमीन के नुमाया किरदार को सराहा गया। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स और डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के इश्तराक से पेशावर में खवातीन मेले में कसीर तादाद में खवातीन ने शिरकत की। मेले में खवातीन के हाथों की बनी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस मौके पर कॉलेजेस की तालिबात के माबैन कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले भी हुए। सूबे के दीगर अजला में भी सरकारी और निजी इदारों, कॉलेजों और जामियात में तकारीब के दौरान माशरे में उमूर खानादारी और मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार को काबिल सताइश करार दिया गया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। पाकिस्तान में इटली के सफीर आंद्रियास फेरलेस ने लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि पंजाब में सरमायाकारों के लिए 13 इकनॉमिक जोन की मनसूबाबंदी की गई है और 7 स्पेशल इकनॉमिक जोन नोटिफाई हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इटली के सरमायाकारों के लिए सूबे में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है और हुकूमत सरमायाकारों की मुकम्मल हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान और इटली के दरमियान तिजारती वफूद के तबादले पर जोर दिया। इस मौके पर अतालिबी सफीर ने तारीखी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा और पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन में दिलचस्पी जाहिर की।
नाज़रीन, कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ है। इजलास में मेगा करप्शन मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि 189 मेगा करप्शन मुकदमात में से 63 मुकदमात को एहतसाब अदालतों ने कानून के मुताबिक मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया है, जबकि 95 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनकी जल्द समाअत के लिए एहतसाब अदालतों में दरखास्तें दायर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशियात करने से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत 17 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच के रूबरू एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि नजरसानी केस में कोई नया मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया जा सकता, इसलिए इस केस की समाअत बराह रास्त नशर नहीं की जा सकती। नजरसानी केस में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई नई दरखास्त दायर नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के दलाइल का इन्हसार गैर मुल्की अदालतों के फैसलों पर है। टेक्नोलॉजी की मदद से कई मामलात में अदालत को आसानी और सहूलत मुयस्सर आई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बराह रास्त नशरियात से अवाम हक़ाइक़ से बेहतर तौर पर आगाह हो सकेंगे। मामले खुसूसी तलाक़ पंजाब डॉक्टर फरदास आशिक अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक़ फराहम करना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का अज़्म है और हमारी हुकूमत ख़वातीन को अपनी सलाहियतों के इजहार का हर मुमकिन मौका फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी औरत समाजी और सकाफ़ती अक़दार की मुहाफ़िज़ है। फरदास आशिक अवान ने कहा कि हुकूमतें अकेले मुआशी महाज पर नहीं लड़ती, अगर हम अपनी ख़वातीन को मईशत का हिस्सा बनाएंगे तो हमारी मईशत मुस्तहकम होगी। सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस के आईजीज ने मातहत अफसरान के डैशबोर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली है और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तफसीली रिपोर्ट पेश की। नाज़रीन, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत का मुनासिब इजाला न करने पर आईजी सिंध ने 25 पुलिस अफसरों को वार्निंग लेटर जारी किए। आईजी गिलगित बल्तिस्तान ने 1 DIG और 2 SPs की वजाहत तलब की। सिंध में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची, मलीर, कोरंगी, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, घोटकी, लाड़काना, कश्मोर और जैकबाबाद के SSPs को तंबीह के लेटर जारी किए गए। SP शिकारपुर और कुंबर, SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट 1 और SP सदर की कारकर्दगी को सराहा गया। DIG बल्तिस्तान रेंज, SP हुंजा और SP स्कर्दू से वजाहत तलब की गई है, जबकि SSP गिलगित और SSP अस्तोर की बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ भी की गई है। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान की, जिनका कहना है कि पेशावर यूनिवर्सिटी सूबे की एक कदीम तारीखी आला तालीमी दरगाह है। यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास की सदारत करते हुए गवर्नर ने कहा कि यहाँ मयारी तालीम की फराहमी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काबिल तकलीद है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी के माली मामलात बिलखुसूस बजट तैयारी और अखराजात में तरजीहात को सामने रखते हुए बेहतरीन इंतजामी फैसले करने की हिदायत की। मिस्र में पाकिस्तान के नामजद सफीर साजिद बिलाल ने काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की और उनको सिफारती दस्तावेजात पेश की। सदारती महल में होने वाली इस पुरवकार तकरीब में पाकिस्तानी सफीर ने मिस्र के सदर को पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा सेहत और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए इन महकमों को 2-2 हिस्सों में तकसीम करने का उसूली फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में मुख्तलिफ सूबाई महकमों में जारी इस्लाहात के अमल का जायजा लेने के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को दीगर सूबाई महकमों में भी जारी इस्लाहाती अमल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद शाह ने कहा है कि गिलगित और स्कर्दू में FPSC के दफातर के क़याम के लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान जमीन फराहम करेगी। चेयरमैन FPSC के साथ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में उन्होंने कहा कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से FPSC के तहत भर्तियों के लिए 590 आसामियां भेजी गई हैं और जल्द मजीद आसामियां भी FPSC को भिजवाई जा रही हैं। इन आसामियों पर भर्तियों के अमल को तेज किया जाए। पाक बहरिया की जानिब से रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान 2 तरफा बहरी मशकों का इनेकाद किया गया। बहरी मशकों में पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर के अलावा अमरीका, जापान, रूस और उम्मान के बहरी जहाज़ों ने शिरकत की। 2 तरफा मशकों के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का इनेकाद किया गया। इन मुश्तरका बहरी मशकों का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के साथ ताल्लुकात और ऑपरेशन को मजीद फरोग देना है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये बहरी मशकें समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की अक्कासी करती हैं। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास राना तनवीर हुसैन की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। उस्मान ट्रेडर्स मुल्तान की जानिब से 6 अरब रुपए जाली टैक्स रिफंड का मामला ज़ेर गौर लाया गया। इस मौके पर यह कहा गया कि जाली टैक्स रिफंड केस में ताहाल कौम की रकम वापस क्यों नहीं आई है।
SPR हुकाम ने कहा कि ये मामला अभी अदालत में है। और मोटरवे पुलिस की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन पर शोर कोट इंटरचेंज M4 पर तकरीब का इनेकाद किया गया। IG मोटरवे कलीम इमाम ने वीडियो लिंक खिताब के दौरान कहा कि मोटरवे पुलिस की ख़वातीन अहलकार कौम की इज्जत व वक़ार में इजाफे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उनका कहना था कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मोटरवे पुलिस की ख़वातीन अहलकारों की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तकरीब में मोटरवे पुलिस की ख़वातीन अहलकारों ने शिरकत की। जितना साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे सर्व करते हुए, तो होम लाइक फीलिंग्स आई हैं हमेशा। तो हमेशा वी फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट। आज 8 मार्च है, पूरे दुनिया में वुमेन डे मनाया जा रहा है। वहाँ पे आज मोटरवे पुलिस में भी ये दिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए IG साहब ने सेक्टर लेवल पे, जोनल लेवल पे, हर लेवल पे इसका इनेकाद किया है। हम तमाम लेडीज को यहाँ पे बुलाया गया है। जितने खेलों की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेरे तमाम लेडीज मोटर बाइक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 150 से जायद लेडीज बाइकर्स ने हिस्सा लिया। शुरका ने सोसाइटी की बाहिम्मत खवातीन की हौसला अफजाई और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में खवातीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए 12 किलोमीटर का सफर तय किया। रैली में DG रेंजर्स सिंध और इनकी बेगम ने बतौर मेहमान शिरकत की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ी फातिमा सना ने विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। PCB ने फातिमा सना के लिए अवार्ड का ऐलान खवातीन के आलमी दिन के मौके पर किया। PCB के CEO वसीम खान ने फातिमा सना को अवार्ड दिया। ऑलराउंडर फातिमा सना 5 एक रोज़ा और 4 T20 मैचेस में कौमी विमेंस टीम की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। वेस्ट इंडीज ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में श्रीलंका को 3 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। कॉलेज में खेले गए मैच में मेहमान श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बनाए। दिनेश चंदीमल 54 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। आशिन बंदारा ने 44 रन स्कोर किए। जवाब में मेजबान वेस्ट इंडीज ने मुकर्ररा हदफ 19 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। साइमंस 26 और निकोलस पोरन 23 रन के साथ नुमाया रहे। ऑलराउंडर फाबियन एलन ने 6 गेंदों पर जारहाना 21 रन बनाए और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। और अब कुछ बात करते हैं रोटरडैम टेनिस टूर्नामेंट के हवाले से। रूस के आंद्रे रबलेव ने रोटरडैम टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। नेदरलैंड्स में खेले गए फाइनल में आंद्रे रबलेव ने हंगरी के मार्टिन फिक्सोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। रबलेव ने फिक्सोविच को 7-6 और 6-4 से मात दी। रूसी खिलाड़ी का यह मुसलसल चौथा ATP 500 एजाज है। आलमी नंबर 8 रोबलेव की ATP चैंपियनशिप में यह लगातार 7वीं, जबकि ATP 500 में मुसलसल 20वीं कामयाबी है। अर्जेंटीना के डिगो श्वार्ट्जमैन अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो गए हैं। ब्यूनस आयर्स में खेले गए इवेंट के फाइनल में डिगो श्वार्ट्जमैन ने हमवतन फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। श्वार्ट्जमैन ने फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को 6-1 और 6-2 से बआसानी मात दी। इस कामयाबी के बाद ब्यूनस आयर्स 2019 और कार्डोबा 2020 के रनर अप श्वार्ट्जमैन ने अपने मुल्क में पहला टाइटल हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रॉजर फेडरर 13 महीने बाद कोर्ट में वापसी के लिए तैयार है। वो घुटने की इंजरी से सेहतयाब हो गए हैं और दोहा में जारी कतर ओपन में हिस्सा लेकर कम बैक करेंगे। रिकॉर्ड 20 दफा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर ने अपना आखिरी मुकाबला गुज़श्ता साल खेला था। 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाले कोहपैमाओं की हौसला अफजाई के लिए प्रेस क्लब स्कर्दू में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नामवर नौजवान कोहपैमा साजिद अली सदपारा ने कहा कि बल्तिस्तान के कोहपैमाओं ने हमेशा से मुल्क और कौम का नाम बुलंद किया है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि बल्तिस्तान के कोहपैमा गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं, जिन पर पूरी कौम को फख्र है। आखिर में कोहपैमाओं में शील्ड्स भी तकसीम की गई। रूस में सालाना क्रायथलॉन इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें दौड़, स्कीइंग और आइस स्विमिंग के मुकाबले हुए। मॉस्को में होने वाले इवेंट में खेलों में सेहतमंदाना सरगर्मियों के शौकीन अफराद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सख्त सर्दी और बर्फबारी के बावजूद शुरका ने जोश और जज्बे के साथ इवेंट में हिस्सा लिया। मनफी दर्जा हरारत में एथलीट्स ने तैराकी समेत तमाम मरहले तय किए।
آئرلینڈ کے سائیکلسٹ سیم بینٹ نے پیرس ٹو نائس سائیکل ریس کا پہلا مرحلہ اپنے نام کر لیا ہے۔ فرانس میں ہونے والی 8 مراحل پر مشتمل سائیکل ریس کا افتتاحی مرحلہ 186 کلومیٹر پر محیط تھا۔ ریس کے آغاز پر ہی متعدد سائیکل سواروں کو پائل اپ کا سامنا کرنا پڑا۔ 2013 اور 15 کے فاتح آسٹریلیا کے ریچی پورٹے بھی 35 کلومیٹر قبل حادثے کا شکار ہو کر مقابلے سے دستبردار ہو گئے۔ ناظرین، ملک کے مختلف علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور اس کے مضافات سمیت بالائی علاقوں میں کل رات اور آج صبح کہیں کہیں ہلکی بارش ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اور اب آخر میں ملک کے مختلف شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب تک کی اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید باخبر رہنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن نہایت اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد خاندان اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار اور قربانیوں کا اعتراف کرنا ہے۔ I wish all women a happy International Women's Day. IWD has a rich history of protest and political activism. This annual day was initiated in 1910 at an international women's conference to promote socialism, fighting settler colonialism, along with demands for equal pay, free childcare and union rights. ایک جانب دنیا بھر میں اس دن کے حوالے سے تقاریب کا اہتمام اور خواتین کے حقوق پر گفتگو کی جاتی ہے، اور دوسری جانب مقبوضہ جموں کشمیر کی خواتین ہیں جن کے حقوق تو ایک طرف، ان کی زندگیاں ہی موت کی دہلیز پر کھڑی ہیں۔ کشمیری قوم نے استصواب کیا مانگا کہ جبر و ستم کا وہ دور شروع ہوا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کشمیری خواتین خاص طور پر اس کا ہدف بنائی گئیں، جن سے بدسلوکی اور بے توقیری کو بھارتی فوج نے جنگی حربے کے طور پر اختیار کیا، تاکہ کشمیری قوم کو احساس دلایا جائے کہ ان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کی پامالی ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ They are talking about the empowerment of women. They are talking the equal rights. They are celebrating it. But here in Kashmir we have nothing to celebrate on this day, International Women's Day. Because we are living in a conflict. As a women, we are the worst sufferers of conflict. We are suffering as mothers, we are suffering as sisters, we are suffering as daughters. Women have been victimized. This victimization is politically motivated because we are in a struggle for better political change. They want to suppress this ongoing movement.
and we are facing the humiliation. 1989 से आज तक 11,000 से जायद हव्वाजादियां इफ्फत से महरूम कर दी गई हैं, 23,000 से जायद बेवा हो चुकी हैं और इसके अलावा हजारहा ऐसी खवातीन हैं जिनके शौहर बरस हा बरस से गायब हैं। वो जेलों में हैं, किसी काल कोठरी में हैं या मारकर किसी बेनाम कब्र में दफना दिए गए हैं। जिंदा भी हैं या नहीं कोई नहीं जानता। कश्मीर में खवातीन के लिए न चादर है न चार दीवारी, हर असूल और हर जाब्ता जाबिर भारतीय फौज के बूटों तले है। फौज बिला रोक टोक घरों में घुसती है, दिन और रात की कोई कैद नहीं। दरवाजे खिड़कियां बर्तन तोड़कर बाकी अशिया को आग लगा दी जाती है ताकि एक जानिब माशी तौर पर कश्मीरियों को बर्बाद किया जाए और दूसरी जानिब खौफ के माहौल को रवाज दिया जाए। चारों तरफ हमारे मकान को डैमेज कर दिया उन्होंने, चारों तरफ उन्होंने फायरिंग कर दी और हम लोग बीच में थे, वो हम पे भी फायर कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि हमारे आजू बाजू में जो रही थी गैलरी की, जो वो साइड में दीवार रही थी, तो उनसे हम बच गए, वरना हमारा मकान और हमको भी उन्होंने तबाह कर दिया था। जब कमरे में गई, वो जो हमारे पड़ोसी है उनके मकान में उन्होंने लिया। पहले मेरे पास SHO साहब आए, पहले उन्होंने मेरा मेंटल टॉर्चर किया, फिर मैं वहाँ से निकली, फिर DSP साहब ने मुझे पकड़ा तो उन्होंने भी मेंटल टॉर्चर किया। मेंटल टॉर्चर गालियाँ गलूचा निकाली, बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको सरेआम नंगा कर देंगे। ऐसे वाकयात की भी कोई सुनवाई नहीं। भारतीय अदालतें अपनी हुकूमत के साथ हैं और इंसाफ के तमाम रास्ते बंद हैं। IWD 2021, we need to expose the crimes against Kashmiri women and speak in support of their demand for self-determination. Since 1990, about 10,000 Kashmiri women have been raped. 20,000 have been made widows. Indian military personnel commit these shocking crimes, but no one has been charged. Mark IWD by standing with Kashmiri women. ऑस्ट्रेलियाई सियासतदान और साबिका सेनेटर ली रोहिनन के बयान के बाद अब मसले कश्मीर की गूंज दुनिया में हर जगह सुनाई दे रही है। लिहाजा अगर भारत अपने साबिका मौक़िफ़ पर कायम रहता है तो वो वक्त करीब है जब उसे घुटने टेकने पड़ेंगे और कश्मीरी अपनी मंजिल से हमकिनार हो जाएंगे।